Hello guys, I am Vinay Pandey, Master Teacher Chemistry at Vedantu, and let us solve question number 7 of JEE Advanced 2019 Paper 1 Chemistry. And here is the question. Question is, which of the following statement or statements are true? A. Statement 1, that is option number A. The two six-membered cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are called anomers. Okay. Option B. Hydrolysis of sucrose gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Okay. Option C. Monosaccharides cannot be hydrolyzed to give polyhydroxyaldehydes and ketones. Okay. D. Oxidation of glucose with bromine water gives glutamic acid. Okay, so let us check one by one. These two six-membered cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are called anomers. Let us solve this. See, if you go for option A, you see two six-membered cyclic forms of glucose are this. You see, this is carbon number 2, OH goes down. कार्बन नंबर 3 OH इज अपवर्ड, कार्बन नंबर 4 OH नीचे आएगा, कार्बन नंबर 5 पर OH नहीं होता लेकिन यहाँ होता है CH2OH विच इज़ कार्बन नंबर 6. इफ कार्बन नंबर 1 हैज़ OH एट डाउन साइड इट इज़ कॉल्ड अल्फा D प्लस ग्लूकोज, राइट. ठीक है ना. और अगर मैं इसकी एक दूसरी फॉर्म बनाऊँ जिसमें कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस है, कार्बन नंबर 2 again has OH at down side, carbon number 3 H upward, carbon number 4 again down. ठीक है ना. कार्बन नंबर 5 के ऊपर कार्बन नंबर 6 है. अगर कार्बन नंबर 1 का OH अपवर्ड है, ठीक है ना, या इसको राइट और लेफ्ट ऐसे बोलते हैं, इसको अगर हम लोग इसमें बनाएं चेयर फॉर्म में, 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये देखें आप, ये दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग. वी आर गोइंग टू मेक अ चेयर फॉर्म ऑफ दिस. कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 के जो ग्रुप्स हैं और कार्बन नंबर 5 के, वो सब इक्वेटोरियल पर होते हैं, राइट. अगर कार्बन नंबर 1 का ये OH एक्सियल पर आया है वर्टिकली डाउन, ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज. और ज़रा बीटा भी बना लेते हैं, ये देखें, दिस इज़ बीटा. कार्बन नंबर 2 नीचे, carbon number 3 upward, carbon number 4 downward again, carbon number 5 is not having OH but it is having CH2OH which is carbon number 6 actually. And if carbon number 1 here has OH at equatorial, it is beta form. और आप देखें, when two carbohydrates are having difference in configuration only at carbon number 1 which is anomeric carbon, when two carbohydrates are having difference in configuration only at anomeric carbon, they are called anomers. That means alpha and beta are actually anomers. ये anomers होंगे, they are anomers. That means statement 1 is correct, true. This statement 1 is true. ठीक है. statement 2 क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज. ट्रू है भाई, चेक कर लेते हैं. ये है हमारा सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाएं ना, सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, इट इज़ C12H22O11. इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +65 डिग्री, राइट. और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं एसिडिक मीडियम में, वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और इन्वर्टेज नाम का एक एंजाइम भी इसमें इन्वॉल्व है. every reaction of carbohydrate is done, it is caused by an enzyme, a specific enzyme. तो इसमें D प्लस ग्लूकोज मिलता है हमें, वी गेट D प्लस ग्लूकोज, स्पेसिफिक रोटेशन +52.5 एंड D माइनस फ्रक्टोज मिलता है, स्पेसिफिक रोटेशन -92.5 डिग्री, राइट. दोनों का फॉर्मूला सेम, C6H12O6. But overall it is a levorotatory mixture. Right. और इसीलिए हम इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं. एंड द प्रोडक्ट मिक्सचर इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर. इट इज़ ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी
mixture, dextrorotatory sugar, and it is hydrolyzed to a levorotatory product mixture, and this product mixture is also known as invert sugar, right? तो इसका मतलब ये है कि आर स्टेटमेंट बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू, राइट? लेट्स गो फॉर सी ऑप्शन. Monosaccharides cannot be hydrolyzed to give polyhydroxyaldehydes and ketones. सी मोनोसैक्राइड्स क्या है? हमारे कोर्स में मोनोसैक्राइड्स हैं. अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो हमारे कोर्स में जो मोनोसैक्राइड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, गैलेक्टोज और मैनोज, दीज आर द मोनोसैक्राइड्स वी नॉर्मली स्टडी इन आवर केस, राइट? वैसे तो मोनोसैक्राइड्स कुल मिला के 16 है, मतलब एल्डोहेक्सोसिस केवल 16 है और एल्डोकीटोसिस 8 है कुल मिला के, कीटोहेक्सोसिस 8 है कुल मिला के, लेकिन जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो ये है इनमें से. और मोनोसैक्राइड्स की डेफिनेशन ही यही है. मोनोसैक्राइड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर बाय हाइड्रोलिसिस. अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा CO2 में, H2O में, और एनर्जी मिलेगी. दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट. इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, ठीक है ना. जैसे मान लो हम कोई पॉलीसैकेराइड ले लें, ठीक है ना. अगर हम कोई पॉलीसैकेराइड ले लें, अब इस पॉलीसैकेराइड को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड 2 to 1 ओलिगोसैकेराइड में आता है. इस ओलिगोसैकेराइड को जब हम ब्रेक करते हैं तो मोनोसैकेराइड आता है. और इस मोनोसैकेराइड को ब्रेक करते हैं, ऑफ कोर्स एवरी स्टेप सम एंजाइम इज इन्वॉल्व. अगर इस मोनोसैकेराइड को हम ब्रेक करें तो फिर हमें सीधे CO2, H2O और एनर्जी मिलती है, ठीक है ना. तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट C, दैट इज ऑप्शन C इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट डी देख लेते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड. ये गलत स्टेटमेंट है. देखिए, अगर आप ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज क्या है? CHO, राइट पर OH, राइट लेफ्ट, राइट, ठीक है ना. दिस इज ग्लूकोज. If you oxidize it with bromine water is very mild oxidizing agent and it oxidizes this one. Only CHO and no other group is oxidized on alcohol with bromine water, right? Bromine water से कोई और दूसरा ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होता है. And this acid is known as gluconic acid, not glutamic, ठीक है ना. ग्लूकोनिक एसिड ये होता है. ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना. मैं अगर यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर बना सकूँ, ग्लूटामिक एसिड इज़ एन अमीनो एसिड. अमीनो एसिड ये है, देख लें आप, CaCOOH and here one side chain with 2 carbons and 1 more COOH. This is glutamic acid. This one is glutamic acid which is actually an amino acid, right? ये है ग्लूटामिक एसिड, और ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है. अंडरस्टूड. दैट मीन्स स्टेटमेंट डी इज़ नॉट करेक्ट. तो ABC, इसका मतलब हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए हुआ A, B and C. ओके, प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन.